Hello everyone, my name is Suparnesh Shinde. I am from Center for Defense Career and today we are going to look at solutions which were there in NDA 2024 for chemistry questions. So let's have an overview of it. So there were total 15 questions asked. We have categorized it into different sections. Pehla section is your separation technique. Second is your atomic structure. Third is your physical preparation and properties of carbon, nitrogen and oxygen. Then is your mole concept, then is your metals and non-metals, then manufacturing cement glass, oxidation redox reaction and reduction, then is your physical and chemical change. If you look at it, most of the questions have been asked for preparation and properties of carbon, nitrogen and oxygen, which is 59, 114, 115, 117 and 119, total of 5 questions. ठीक है, उसके बाद देर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें से 58, 113, 118 तीन क्वेश्चंस आए हुए हैं. दिस इज ऑफ सेट ए. अगेन आई विल रिपीट, दिस इज ऑफ सेट ए. नेक्स्ट इज योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से दो क्वेश्चंस आ चुके हैं. एंड लास्टली यू हैव वन क्वेश्चन ईच फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स. So let's start with our very first topic, which is separation technique. So first question is, which one of the following technique is used in blood test in a diagnostic laboratory? Options is filtration, centrifugation, next is your chromatography and then crystallization. See, chromatography in this liquid is in a mixture form and you take a volatile medium and through which the mixture separation happens, which generally doesn't happen in blood test or in diagnostic laboratory. So this option is wrong. Next is your crystallization. Crystallization में what you do is you take a solvent in which you add this solid and then you heat it, and then after heating you cool it down. तो heat के बाद जो cool होगा it becomes a crystallized structure, and then you remove that crystallized structure and then you use it to basically separate that particular solid structure. Okay, this is also not used in blood tests. Next is your centrifugation. Centrifugation is the right answer. The reason being is because centrifugation में what happens is that component mixture of different sizes, you separate those by using centrifugal force. So centrifugal force is something which acts on a circle and which is radially outward. ठीक है, तो उसकी वजह से जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा वो बॉटम ऑफ द फ्लास्क एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड बाकी सब उसके अहेड एक्यूमुलेट होते जाएंगे. So with this we see the separations. This is used to test whether there is RBC or WBC deficiency or any other impurities which is present in blood. It has been used in biochemistry, cellular, molecular biology, medicine and pharmacy. Now there are different separation techniques. ठीक है, so this is first one is filtration. इसमें जो impurities होती है हम लोग remove करते हैं by using filter paper. Very simple thing which you have used in your day to day life. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में आप टू इमिसिबल लिक्विड्स को बॉईल करते हो, बट दोनों का बॉइलिंग डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का. इफ इट इज़ मोर देन 20-25% और 30%, देन ओनली यू कैन यूज दिस डिस्टिलेशन. यू बॉईल इट एंड देन यू कूल इट डाउन. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली यूज्ड वेयर देर इज टू or more mixtures, elements present in the mixture. Example, पेट्रोल. पेट्रोल में होता है आपका प्रोपेन, मीथेन, इथेन एज वेल एज ब्यूटेन. तो ये सबको निकालने के लिए यू यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ऐसा एक डिस्टिलेशन होता है एंड देन देयर आर कॉलम्स फॉर इट. ठीक है, एंड जैसे जैसे ये मिक्सचर ऊपर जाते जाता है वैसे वैसे ये एक्यूमुलेट हो जाएगा या फ्रैक्शनल कॉलम्स के पास, एंड देन यू कैन रिमूव इट बाय सेपरेशन. नेक्स्ट इज योर सेपरेटिंग फनल. दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट टू immiscible immiscible liquids, and this method is used for extraction of iron. And next is sublimation. Sublimation, direct change of solid state to a liquid state or even to a sometimes to a gaseous state.
This happens in a volatile substances, example naphthalene balls. ठीक है. So now next question based on atomic structure, where we will be looking at atomic mass, atomic number and valency. So first question is, which among the following is polyatomic? So polyatomic definition is, in a particular structure, if there are three there are three or more number of atoms present, we call it polyatomic. So let's see first one, which is phosphorus, chlorine, sulfur and aluminium. Chlorine is present as Cl2, which is your diatom. तो ये polyatomic तो हुआ नहीं, तीन से ज़्यादा है नहीं. Next we move on to aluminium. Aluminium is Al+3. Aluminium is monoatomic, मतलब एक ही एटम है इसमें. ठीक है. Moving on to sulfur. Sulfur contains S8. 8 molecules of sulfur are present as an element. So this is polyatomic, but there is a twist. Phosphorus is also polyatomic with P4. तो देयर विल बी ए कन्फ्यूजन कि फॉस्फोरस को करे या सल्फर को करे. देखो दोनों ही राइट है, बट सल्फर इज द मोस्ट पॉलीएटॉमिक एलिमेंट. इसलिए अगर इफ यूपीएससी अलाउज देन द आंसर विल बी बी और ए, बट मोस्टली इट शुड बी बी. ठीक है. नाउ देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स विच आर पॉलीएटॉमिक: सेलेनियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस. ठीक है, याद रखना है. This is where we have given you a quick bit of monoatomic, triatomic and polyatomic. ऐसे triatomic में 3 एलिमेंट, 3 एटम्स होते हैं. एग्जाम्पल ओजोन. ठीक है. डायटोमिक में इट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, एज वेल एज क्लोरीन, बट क्लोरीन मैंने दिया था, सो आई डिसाइडेड टू गिव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसे सल्फर एंड फॉस्फोरस. ठीक है. Now let's move on to next question. Next question is, what is maximum number of electrons that can occupy the first shell of atom? First shell है ना, shell, subshell, structure of atoms. 11th standard का chapter था. So let's see the options. Option 2, option 8, option 4 and option 16. Right answer is option 2, because this all contains in S block, S shell na. So in S shell there are 2 electrons, है ना. It has 1 orbital, 2 electrons. P shell has 3 orbitals, 6 electron. D shell has 5 orbital, 10 electrons, and F shell has 7 orbitals, 14 electrons. ठीक है. So ये अपने को याद है, and we should remember this. It was a very easy question. Now let's move on to the next question. Next question again, for aluminium atomic number is 13 and mass number is 27. Which one of the following statement is not correct? See, we will have to look कि उन्होंने करेक्ट या नॉट करेक्ट दिया हुआ है. स्टेटमेंट 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर के पास जाना है. ठीक है. सो नाउ एटॉमिक नंबर इज 13 एंड मास नंबर इज 27. ठीक है. एटॉमिक नंबर तो हमें पता है ना, व्हाट इज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज your number of protons present, बराबर, and mass number is your protons plus neutrons in the nucleus. ठीक है. So let's look at the option. Number of electron present is 13. Yes. Number of proton present in aluminium is 13. Yes. जितने number of protons usually होते हैं उतने number of electrons होते हैं. So we don't have to worry much about it. ठीक है. Next is number of neutron present in aluminium is 14. If you look at the simple mathematics, देखो 13 plus 14 gives you 27. So if 13 is your proton, then neutron will definitely be 14. And next is valency 2. एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा +3 होती है ना.
है ना. सो एल्यूमिनियम वैलेंसी इज 2, इट्स अ रॉन्ग आंसर. ठीक है. इसका अगर आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, 3s2 3p1 लूज करके ये 2s2 2p6 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा. दैट्स वाई इट विल लूज +3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. ठीक है. Now let's move on to the next. This is a quick bit I've given for you guys. Atomic number of an element is number of protons in the nucleus of each of the atom of that element, and mass number, as I said, number of protons and neutrons in an atom. ठीक है. Kindly read whatever I have given. इतना भी हो जाएगा तो काफ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से है. इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन हैज वैलेंसी -3. ठीक है. ऑप्शन इज नाइट्राइट, सल्फाइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट. सल्फेट इज SO4 2-, तो इसका तो ये आंसर गलत है. इवन नाइट्रेट इज NO3, इसका भी आंसर गलत है. सल्फाइड इज S, ये भी आंसर गलत है. करेक्ट आंसर विल बी नाइट्राइट विच इज योर N3. It is a nitrogen based compound in which nitrogen atom accepts 3 electron to complete the octet. It can be presented as Na3-. ठीक है. Next, at what temperature does liquid water shows maximum density? 299 Kelvin, 285 Kelvin, 277 Kelvin and 373 Kelvin. See, liquid water shows maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस, बट हमें इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में. सो अगर इसका कन्वर्जन केल्विन में करेंगे तो दिस विल बी 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन which is approximately 277 Kelvin, 0.15 Kelvin, right. 15 तो है नहीं यहाँ पे. सो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. 373 केल्विन, तो इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो डोंट वरी, केल्विन का कन्वर्जन कर पाओगे तो ये आंसर इजीली मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अप इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वैलेंसी ऑफ 3. ठीक है. तो वैलेंसी तो हमें पता है 3 मतलब क्या है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऐसा कुछ है. सो इन कार्बन वी हैव 4 वैलेंसी ना. कार्बन इज टेट्रावैलेंट हम बोलते हैं. सो कार्बन वाला ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यूजुअली 2 बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी 2 है. ठीक है. सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है इसलिए वैलेंसी 1 है. तो एंड में बचा नाइट्रोजन विच हैज़ 3 वैलेंसी. नाइट्रोजन कुछ ऐसा दिखता है, 3 बॉन्ड्स एंड ऊपर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 1 इसमें टोटल हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड है ना 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट. तो ये स्टेबल हो गया. ठीक है. इसका पी शेल कंप्लीट करने के लिए और 3 बॉन्ड ये बना लेगा तो +3 हो जाएगा तो 2s2 2p6 हो जाएगा ये. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, दिस वन इज वेरी सिंपल. वन इज सुपर फॉस्फेट, नेक्स्ट इज बोन मील, थर्ड इज पोटेशियम सल्फेट एंड फोर्थ इज यूरिया. यूरिया इज यूजुअली यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर एंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. सो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. पोटेशियम सल्फेट भी यूज़ नहीं होता है. बोन मील ऑल्सो, सुपर फॉस्फेट भी यूज़ इसका काफ़ी कम है. ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट यूजेस बट इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए यूरिया, क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर्स. ठीक है. सो देर आर सर्टन मोर fertilizers in which nitrogen is used, in which nitrogen is there. Nitrate
अमोनिया, अमोनियम और यूरिया। ये 3-4 आपको बाय हार्ट करने, इनके स्ट्रक्चर्स आपको देखने, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ डायमंड। एलिमेंटल कंपोजिशन मतलब उसके एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, सो द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ डायमंड, फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, next is carbon and hydrogen, third is pure carbon, and fourth is pure silicon. Diamond is an isotope of carbon, right? Diamond plus graphite make carbon का isotope, बराबर। So the option would be pure carbon। ठीक है, ये सब बाकी तो it is of no use, so don't get worried, it was a simple question। Next one will come on to the mole concept। ठीक है, so mole concept is also really easy, this one is also easy, but let's see। the mass of 0.5 mole of N2 gas is, what has been asked, 0.5 mole of N2 gas। इसमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वन 7 ग्राम, 21 ग्राम, 21 ग्राम, 14 ग्राम एंड 28 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता है N2 गैस का 1 मोल कितना है, हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। बट नाइट्रोजन इज व्हाट, 14 ना, 14 U, मतलब इसका एटॉमिक मास, सो N2 वुड बी 14 into 2 which is your 28U। now 1 mole is equal to 28 gram, I could say, I'm extremely sorry, gram। so 0.5 mole would be 14 ग्राम, बराबर ना, हाफ हो जाएगा ना। सो दिस विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, इजी था, देयर वाज नो रीजन टू गेट पैनिक्ड। इसमें आपको सिंपली 1 मार्क या जो भी आपको है, एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज योर metals and non-metals। now in this, the chemical reaction AgCl, silver chloride, gets converted into 2Ag plus Cl2। ठीक है, now एक रिएक्शन का कंडीशन पूछा है, टेक्स प्लेस मतलब कंडीशन है। सो फर्स्ट वन ऑप्शन इज इन डार्क, इन सनलाइट, ऑन हीटिंग एंड अंडर प्रेशर। देखो AgCl होता है ना, उसको यूजुअली डार्क बॉटल्स में बंद करके रखते हैं, बिकॉज अगर उसको सनलाइट लग गया तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू Ag plus Cl2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन सनलाइट। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन, AgCl plus sunlight gives 2Ag plus Cl2 chlorine gas। ठीक है, now let's move on to the another portion। next is manufacturing of paint, cement and glass। this one was little difficult because usually they don't ask this type of questions, binders पूछते हैं, but this was a little tricky one। which one of the following is commonly used as anti-skinning agents। एंटी स्किनिंग एजेंट्स इन पेंट्स इज बेसिकली, आप जब पेंट का जो पेंट बनता है कंपनी में, एंड देन उसे हम जब उसका जब हम पैकेजिंग करते हैं, तो बिकॉज ऑफ अ पैकेजिंग कुछ मॉइस्चर बचा रहता है, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर की वजह से जो ऊपर का जो पेंट का पार्ट होता है ना, जो डब्बे से जुड़ा हुआ होता है, उसमें ऐसा स्किन जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, स्किनिंग जैसा, मतलब पतला सा और ऐसा ऐसा थोड़ा सा लंबा सा एंड पतला सा उसको। सो फॉर दैट दे यूज एंटी स्किनिंग एजेंट। So first is gelatin, pyridine, polyhydroxyphenol and N-methyl pyrrolidone। तो इसमें correct answer is N-methyl pyrrolidone। See, there are certain MCQs यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली चीज़ों को मगअप करना है, तो this is one of those questions, so don't worry about it। if it is wrong, it is okay, just write it down somewhere so that it will be useful for you whenever you will have your notes। ठीक है, next question is on topic oxidation, reduction and redox reaction। इसमें पहला question is which one among the following is an example of oxidation reaction। freezing of water, dissolving sugar in water, rusting of iron and boiling of petrol। ठीक है, freezing of water is basically your freezing water, right?
मतलब वाटर को आप करते हो कन्वर्ट आइस में विच इज़ अ सॉलिड स्टेट, राइट। तो इसमें तो देर इज नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व, है ना, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर से डिजॉल्व होने की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन इज रस्टिंग ऑफ आयन। आयन को अगर आप एक्सपोज करोगे, आयन रॉड को, इन मॉइस्चर, तो ये रस्ट हो जाएगा ना, तो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू Fe2O3, ठीक है। इसकी वजह से दिस इज राइट ऑप्शन। अगेन नेक्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल। सी नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, बिकॉज बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल भी अगर आप करोगे तो देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल करोगे तो देर इज अ चांस कि वो CO2 + H2O भी बना सकता है, ठीक है। या फिर पेट्रोल का ब्रेकेज होके स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में बन जाएगा, मतलब मीथेन या सब कुछ, मीथेन हो गया या फिर कुछ और हो गया, ईथेन हो गया। सो दिस प्रोसेस इज टेक्निकली, इट हैपन्स एट अ वेरी हायर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज cracking. But I think, I mean, if we look at the paper completely, rusting of iron is something which could happen, ठीक है। सो ऑप्शन वुड बी सी, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो डी भी हो सकता है, बट ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन हैं, बट रस्टिंग ऑफ आयरन में वैसा नहीं है, इसलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी सी, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। It is sublimation of camphor, melting of ice, heating of iron rod and mixing of NaOH and HCl. सिर्फ फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाले टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम लाइक पास्ट 15-20 ईयर्स के, आप पकड़ लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कैश का हुआ है मेरे हिसाब से, बिकॉज यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करने मिल जाएगा और आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। सो डोंट वरी, दिस इज समथिंग, दिस इज अ टॉपिक आई थिंक पर्सनली आपको ये पढ़ना चाहिए। सो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज बेसिकली चेंज फ्रॉम, सब्लिमेशन इज व्हाट, यू चेंज इट फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस, तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ ना, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस सेम ही हो गया, सॉलिड से आप उसको लिक्विड बना रहे हो, तो इसमें भी फिजिकल चेंज है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ आयरन रॉड। आयरन रॉड को आप हीट करके उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वो बहुत ज़्यादा हीट होगा तो भी मेल्ट हो जाएगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ ना, तो फिजिकल चेंज है तो अपने को केमिकल चेंज दिखना है, सो दिस विल गेट कैंसल्ड। लास्ट इज मिक्सिंग ऑफ NaOH + HCl। बचपन में पढ़ा था मिक्सिंग ऑफ NaOH + HCl गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, है ना, एसिड एंड बेस है ना ये दोनों, तो फिर दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ डिफरेंस एज ए क्विक बिट फॉर यू गाइस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपका ऑर्डर, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज रहती है इसमें, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज रहती है बिकॉज मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ हो नहीं रहा है। नेक्स्ट इज योर chemical change. In this chemical composition and chemical properties undergoes a change, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होते हैं। इन दिस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। हमने अभी देखा ना, आप वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, मतलब आइस में कन्वर्ट करोगे, उसका कोई फिजिकल चेंज होगा लेकिन कुछ नया नहीं बनेगा ना, उसमें तो H2O ही रहेगा, बट यहाँ पे थिंग्स विल बी डिफरेंट, न्यू सब्सटेंस या फिजिकल न्यू सब्सटेंस बनता है इसमें, ठीक है। इन दिस सिंस देर इज नथिंग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, सो देर इज नो फॉर्म ऑफ गिव एंड टेक ऑफ हीट, लाइट और साउंड, एनीथिंग, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है बट नॉट मच, ओके। बट इन दिस केमिकल चेंजेस देर इज एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी,
बिकॉज मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं, तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या फिर बॉन्ड्स अटैच होंगे एक दूसरे को, तो देर विल बी एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। आई एम सॉरी। ओके, नेक्स्ट दिस इज टेम्पररी चेंज। यही एग्जांपल देखा हमने वाटर वाला, पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी बन सकता है, ठीक है। बट दिस इज अ परमानेंट चेंज, मतलब अगर इसका कंपोजिशन आप चेंज करोगे केमिकल चेंज से, तो वो वापस वैसे का वैसे ही रहेगा, वापस जाने के चांसेस कम है अनलेस अनटिल आप कोई प्रोसेस से ऐड कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल इज NaOH प्लस HCl ना, NaO NaOH plus HCl gives you NaCl plus H2O। अब ये NaCl plus H2O बना, ये वापस NaOH plus HCl नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से इट्स अ परमानेंट चेंज विच हैज हैपेंड, OH को रिप्लेस किया है Cl ने, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल फॉर्म कैन बी रीगेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जो हमने किया। सिंपल एग्जांपल, वाटर टू आइस को कन्वर्ट किया, आइस को वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हीटिंग एंड कूलिंग से, बट यहाँ पे सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं हो पाएगा ना, हम कुछ फिजिकल मेथड इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना इसको चेंज करने के लिए, सो दिस रिमेन्स अनचेंज्ड बाय फिजिकल मेथड। नेक्स्ट दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज इज टेक्निकली हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल है ना, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड आइस, अगेन सेम थिंग, जो इंटरचेंज हो सकता है। एंड नेक्स्ट दिस इज इरिवर्सिबल, सेम एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। अब ये जो है ये रिवर्स वापस हो नहीं सकता, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, intermixing of two different types of matter on their own is called, first one osmosis, next one diffusion, then is Brownian motion, conductance। conductance is an electrical term, तो उसमें तो देर इज अ कंडक्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन में देर इज अ रैंडम मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स, सो फॉर एग्जांपल मिस्ट और डस्ट इन एयर बहुत रैंडमली मूव हो रहे हैं, तो उसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। सो देर इज नो टेक्निकली इंटरमिक्सिंग इन इट, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज बेसिकली सॉल्वेंट का मूवमेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट सॉल्वेंट का मूवमेंट है ना, देर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, सॉल्वेंट ही मूव कर रहा है ना, तो सॉल्वेंट इटसेल्फ इज अ सिंगल टाइप ऑफ मैटर, सो ये भी ऑप्शन गलत है। द राइट ऑप्शन इज डिफ्यूजन, ठीक है। So diffusion is something where there is intermingling of two different particles or different types of particle because of the kinetic energy. So there is a random and a very continuous motion which is happening. The particles move from higher concentration to lower concentration. For example, दो particles यहाँ पे mix हो रहे हैं and suddenly वो higher concentration से lower concentration में जाके ऐसे 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 segregate होते जाएंगे एक beaker में। आप ऐसे एक beaker पकड़ लो, इसमें पहले ऐसा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इसको, ये दोनों रैंडम कंटिन्यूस मोशन के बाद ये ऐसे 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 सेग्रीगेट होते जाएंगे, ठीक है, इन द मीडियम। सो दिस इज व्हाट इज डिफ्यूजन। तो अगर किसी ने डिफ्यूजन राइट किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑस्मोसिस, ब्राउनियन मोशन, कंडक्टेंस के ऊपर आप एक छोटा सा नोट्स बना लो एंड डिफ्यूजन के ऊपर भी बना लो, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।